Okay, so in the previous two classes, I have explained you about cell, that what cell is, and about all these things, that who has invented the cell, that was Robert Hooke, and who has given the cell theory, that was there were two scientists, those have given the cell theory, and they have explained many points related to cell. After that, I have explained you that on the basis of number of cells, we can divide the cells into unicellular and multicellular. And after that, we have seen that the cells, the organisms, those are made up by only one cell are called as unicellular. Those are made up by more than one cells are called as multicellular organisms. Then we have studied that different organisms have different sorry, cells have different shapes, and their shapes and sizes are dependent upon their function. Like red blood cells have the spindle shape, spherical shape, sorry, and muscle cells are long and elongated so that they can expand and contract easily. Nerve cells are long and branched so that they can send the messages to the body from the brain, and from body to the brain easily. And after that, we have seen that the smallest cell is a bacterial cell, which measures zero point 0.1 to zero point 0.5 micrometer, and largest cell is a cell of an ostrich, which measures 170 millimeters to 130 millimeters. After that, we have seen that the structure of the cell is depend upon the organization of the cells. The way the cells organized in our body, that will become the shape or the structure of any particular organism. Then I have told you that excuse me, that if we see the organism on the basis of their nucleus, that how mature their nucleus is, then we can divide the organisms into two types, that is unicellular and sorry, if we see the cells, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, बीच में एडमिट होते रहते हैं बार बार. If we see the organisms on the basis of their maturity of nucleus, so we can say that organisms are of two types, prokaryotic and eukaryotic, or we can say the cells are also of two types, that is prokaryotic and eukaryotic. The organisms, those are having mature nucleus, they are called as eukaryotic, where there is a separate nuclear membrane and separate nuclear material. And the organisms where nucleus is not mature enough, their nucleus material and nuclear membrane is not separate, they are called as prokaryotic. Clear? After that, I have explained you little bit functions also बताए थे मैंने आपको, कल ये स्टार्ट कर दिया था हमने, है ना यार, ये बहुत तंग कर रहे हैं सच्ची, बहुत परेशान कर रहे हैं. So the outermost layer, this outermost layer is called as cell membrane, and its function is to give a shape and protection to the cell. And otherwise also it allows some things to go inside the cell and prevent some things to go inside the cell, because it is made by a special type of membrane which is called as semi-permeable membrane. Inside the cell there is a liquid or a jelly type substance which is called as cytoplasm. Cytoplasm is actually provide the site to all the organelles. All the organelles, yeah, all the different parts you can say which are present in the cell are present in the cytoplasm. वो cytoplasm के अंदर ही होते हैं. Then I have explained you. यार इसको ना, I think I should close this now, है ना. अब मुझे इसे क्लोज ही कर देना चाहिए ताकि कोई एंटर ही नहीं हो सके. बस बहुत हो गया तुम लोगों का, तेल बना के रखा हुआ है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, समझ में नहीं आ रही इनको ये बात. ओके, सो सेंटर में यहाँ पर एक हमारा पोर्शन आपको नजर आ रहा है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं. इन तीन के बारे में तो कल मैंने आपको बता दिया था. नाउ द फोर्थ पार्ट, द फोर्थ ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is a very important part of the cell. It is also called as the powerhouse of the cell, and it is also called as the kitchen of the cell. क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस और क्यों बोलते हैं इसको किचन?
देखो इसे आप सुनो, मेरी बात ध्यान से समझो। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक सेल अपने आप में एक कंप्लीट बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ होता है वो हर एक सेल के अंदर इंडिविजुअली होता है। So whatever we eat after digestion that converts into the glucose, 7 में पढ़ा है आपने कि जो भी हम खाते हैं वो खाने डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी हमारे काम आती है, हमारी बॉडी उसे यूज करती है। तो हमारी बॉडी उसे यूज करती है। क्लियर? अब क्या होगा कि व्हेन वी ईट द फूड, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लड में मिक्स हो जाता है ये, और ब्लड हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में हमारा सर्कुलेट होता है, और जहां जहां हमारा ब्लड जाता है वहां वहां ये ग्लूकोज भी पहुंच जाता है। ब्लड एंटर्स इनटू ईच एंड एवरी सेल। ब्लड जो है हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर जाता है, और हर सेल में जाकर ग्लूकोज को वहां पहुंचाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्लड जो है वो एक ट्रक की तरह काम करता है। जैसे ट्रक होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, गुड्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाता है। ऐसे ही ब्लड जो है ग्लूकोज को उठाता है हमारे डाइजेस्टिव पोर्शन से, हमारे इंटेस्टाइन से, और उठाकर ले जाता है बॉडी के हर एक सेल में। If there are millions and billions or trillions of cells, this glucose will reach into that millions and billions and trillions of cells. हर सेल के अंदर ये ग्लूकोज पहुंचेगा, और पहुंच कर जाएगा कहाँ? जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ग्लूकोज पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन ग्लूकोज से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें तो क्या चाहिए? हमारी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए? हमारे सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? अब हम सबको पता है वी ब्रीथ इन एंड टेक ऑक्सीजन। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे नोज से ऑक्सीजन एंटर होता है। ये ऑक्सीजन भी लंग्स में जाकर लंग्स जो है इसे ब्लड में मिक्स कर देते हैं, और ब्लड जो कि एक ट्रक की तरह काम कर रहा है, जो कि गुड्स ले जाते हैं, तो जब वो ग्लूकोज को ला रहा होता है साथ साथ ऑक्सीजन को भी ले आता है। ठीक है, अब उसके पास दो गुड्स हो गए, दो माल हो गए, एक तो ग्लूकोज, दूसरा क्या हो गया? ऑक्सीजन। आया, सेल के अंदर एंटर हुआ, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो जानती है कि ये हमारा जाना पहचाना ब्लड है भाई, इसको तो जाने देना है, ये रोज आता जाता रहता है, उसको अंदर जाने देती है। अंदर जब जाने देती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब ग्लूकोज भी है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब ऑक्सीजन भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्शन करते हैं। आपने पढ़ा है 7th में एरोबिक रिएक्शन के बारे में और एनारोबिक रिएक्शन के बारे में, है ना? सो एरोबिक रिएक्शन इज व्हाट? व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यही एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी बनाता है। ये एनर्जी इस सेल के काम आती है। ये जो सेल है इसमें जितने भी काम होंगे उसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ बनी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं और किचन भी कहते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है ये सिर्फ इसी सेल के काम आएगी, दूसरे सेल को ये एनर्जी नहीं देगा। कहेगा नहीं नहीं, अपनी एनर्जी खुद बना, तेरे पास भी तो माइटोकॉन्ड्रिया है, अपने आप बना। तो हर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल के लिए एनर्जी बनाता है। हाउ? बाय रिएक्टिंग विद ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी बनती है। एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनते हैं। तो वाटर का क्या होगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? देखो ब्लड जो अंदर आया है, क्या छोड़ा उसने? यहाँ पर दो माल छोड़े। कौन से माल छोड़े उसने? कौन से दो गुड्स यहाँ पर उसने छोड़े हैं? कौन से दो गुड्स को ड्रॉप किया है? दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, है ना? इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। म्यूट योर वीडियोस। लक्ष्य, हम चलेंगे। who is this? Please mute your videos. एक्टिवा पे चलेंगे हम। इसके घर में बच्चा है बेटा, म्यूट करो अपनी वीडियो। एक्टिवा पे। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो ब्लड आया था, इस ब्लड ने यहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ड्रॉप कर दिया, और उसके बदले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर सेल से बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा इस वाटर का? इस वाटर को ये ब्लड जब जा रहा होगा घूमते घूमते किडनी में छोड़ देगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले आएगा लंग्स तक। लंग्स जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ नोज बॉडी से बाहर निकाल देंगे। आई बात समझ? तो ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में ब्रीफ में समझा दिया।
बट यहाँ में मेन जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि सेल में देयर इज वन ऑर्गेनल जिसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है जैसे बूट का स्ट्रक्चर होता है, शू टाइप स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल because it produces energy for the cell by reacting glucose and oxygen together. क्लियर? तो ये वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है आपको। ठीक, उसके बाद और भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रही हूँ क्योंकि ये वाला डायग्राम आप 9th में भी पढ़ने वाले हो, 10th में भी पढ़ने वाले हो, तो डिटेलिंग आप वहां करते जाओगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो हैं, अच्छा मैं साथ साथ आपको ना डिफरेंस भी बताती हूँ, कल मैंने आपको नहीं समझाया था वो। यहाँ पर हमने बाहर पढ़ा था सबसे बाहर एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, है ना, बोला था ना। सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लाइन भी होती है यहाँ पर, वो किस में होती है, वो एनिमल सेल में नहीं होती, जो प्लांट्स के सेल होते हैं उसमें एक और लेयर होती है बाहर, इसके बाद उसे हम कहते हैं सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। वो प्लांट सेल में होती है, सिर्फ एनिमल सेल में नहीं होती। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी देयर इज वन मोर लेयर, देयर इज वन मोर मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल, जो कि बहुत थिक होती है, मोटी होती है। क्यों होती है प्लांट में और क्यों एनिमल्स में नहीं होती? सी एनिमल्स में ना देयर इज वेल डेवलप्ड स्केलेटन सिस्टम, हमारी बॉडी में भी जैसे देखो वेल डेवलप्ड स्केलेटन सिस्टम है, तो जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो स्केलेटन सिस्टम के अंदर, ये जो सेल्स हैं डेलिकेट से, ये उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, तो अपने सेल्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए उनमें एक और बहुत मोटी सी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई प्लांट्स हैव एन एक्स्ट्रा लेयर विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो आप लिखोगे बिकॉज इन एनिमल्स देयर इज अ वेल डेवलप्ड स्केलेटन सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल विच इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, so they develop a one more thick layer which is called as cell wall for the protection. Clear? अच्छा, अब सेकंड आते हैं, यहाँ पर ये दो ऑर्गेनल्स आप देख रहे हो जो मैंने लेबलिंग किया हुआ है यहाँ पर, दैट इज प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। ये दोनों जो हैं ऑर्गेनल्स, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स में होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट बिकॉज फोटोसिंथेसिस करता है इसलिए उसमें क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स। इट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड बहुत तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है एक जो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, एक क्रोमोप्लास्ट भी होता है जो फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है। जैसे किसी प्लांट के फ्लावर्स रेड होते हैं, किसी के पिंक होते हैं, किसी के येलो होते हैं, किसी के पर्पल होते हैं, तो ये कलर उसमें किससे आता है, क्रोमोप्लास्ट से आता है। और ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो मैंने क्या बोला कि जनरली तो प्लांट और एनिमल के सेल की जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होती है, तो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। फर्स्ट डिफरेंस था आपका सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेकेंड इज प्लास्टिड विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। थर्ड आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम होता है फूड और वेस्ट को स्टोर करना, तो इसकी जरूरत प्लांट्स में ज्यादा होती है क्योंकि प्लांट्स में आपको पता है प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड बनाते हैं और अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं। तो अपने जिस भी पार्ट में वो स्टोर करते हैं उस पार्ट के सेल के वैक्यूल में ही स्टोर करते हैं वो उसको। तो प्लांट्स को क्योंकि फूड सिक्योर करना होता है, स्टोर करना होता है, इसलिए उसके सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और वैक्यूल्स का साइज भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन एनिमल्स को फूड को स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं होती। एनिमल्स डू नॉट हैव दिस टेंडेंसी टू स्टोर द फूड, so that is why उनके सेल में either the vacuoles are absent or very less in number and very small in size। या तो vacuoles होते ही नहीं उनमें, या फिर अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं नंबर में और बहुत छोटे होते हैं साइज में। तो ये हो गए तीन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया सब में होता है, सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, साइटोप्लाज्म सब में होता है, न्यूक्लियस सब में होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, जैसे धागे होते हैं ना, धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और उनके ऊपर बहुत छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे मोतियों, ऐसे लगता है जैसे धागा है और उसके ऊपर मोती पिरो रखे हैं।
These thread-like structures are called as chromosomes. और जो उसके ऊपर beads like structures हैं, मोती जैसे दाने हैं, they are called as genes. इन क्रोमोसोम्स और इन जीन्स का क्या काम है कि ये कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते हैं, जैसे पेरेंट से बेबी में. आप चैप्टर 10 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे कैसे करते हैं. देखो ये हमारे ना सेल में, हर सेल के हर न्यूक्लियस में देयर आर 23 पेयर ऑफ, हर सेल हर न्यूक्लियस में 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. आई बात समझ में? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Videos, Yes, ma'am. I don't know why. मेरी वीडियो बंद होंगी तो फिर यहाँ से मेरा भी सब बंद हो जाएगा. एक्सप्लेन करना बता रही हूँ मैं. मेरी वीडियो ऑन है. ट्राई टू क्लोज योर वीडियोस. ओके. अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो एक और आपको ऑर्गेनल नजर आ रहा होगा, लाइसोसोम्स. क्या होते हैं लाइसोसोम्स? ये भी हमारे स्फेरिकल कलर की स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है. और इनका जो जनरेशन होता है, ये जो बनती है, ये किससे बनती है? जिससे. दीज आर जनरेटेड बाय गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज एक और पार्ट है, ये बनाती हैं. और ये क्या करती है? एंजाइम्स कंटेन करती हैं बहुत सारे. देखो जैसे आपने नाम सुना होगा शायद, हार्मोन्स नाम सुना होगा ना, कि हार्मोन्स में गड़बड़ है. तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं. आपने शायद 7th में डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा बहुत पढ़ा हो किसी एक एंजाइम के बारे में, एमाइलेज एंजाइम के बारे में पढ़ा था जब प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ाया होगा मैम ने. तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं स्पेशली. तो जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन है वो कौन करता है? वो लाइसोसोम्स करते हैं. लाइसोसोम्स जो हैं दे कंटेन हाइड्रोलिक एंजाइम्स, ठीक है. तो इनका जो फंक्शन है वो क्या है? एज पार्ट ऑफ द रिसाइकलिंग सिस्टम ऑफ द सेल. रिसाइकलिंग करते हैं सेल की. इन्हें हम लाइसोसोम्स को ना हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं. सुसाइड बैग. क्यों बोलते हैं हम इनको सुसाइड बैग्स? क्योंकि जितना भी वेस्ट होता है सेल का, सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो बहुत सारा वेस्ट होता है जो ये अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर कलेक्ट कर लेते हैं सारा. और फिर ये क्या करते हैं? ये ब्लास्ट हो जाते हैं. और जब ब्लास्ट हो जाते हैं तो खुद भी मर जाते हैं, और इनके अंदर जितने भी इन्फेक्शन होता है, जर्म्स होते हैं, वो सब भी मर जाते हैं. इसलिए इनको सुसाइड बैग्स बोला जाता है. ये एक तरीके से ऐसे होते हैं जैसे हमारी बॉडी में स्टमक होता है ना हमारी बॉडी में, उस तरीके से ये सेल का स्टमक है लाइसोसोम. जैसे मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में ब्रेन है, तो ब्रेन को हम सेल के किस पार्ट से कंपेयर करते हैं? न्यूक्लियस से, है ना. तो लाइसोसोम को किस पार्ट से कंपेयर करेंगे हम? स्टमक से. ठीक है. तो ये एक ऐसी ऑर्गेनल है जो हमारी डाइजेशन, सेल में डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल का काम करती है. डाइजेशन में हेल्प करती है क्योंकि एंजाइम्स का प्रोडक्शन करती है, और वेस्ट को रिमूव करती है क्योंकि सारे वेस्ट को अपने अंदर कलेक्ट करके ब्लास्ट हो जाती है एक ह्यूमन बॉम्ब की तरह. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग. आपको ना 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया. विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज सुसाइड बैग? आप बोलोगे लाइसोसोम्स. ठीक है. तो आपको ऐसे याद रखने हैं. ठीक है. क्लियर एवरीवन? उसके बाद आता है यहाँ पर गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज का क्या काम है? सेल जो है ना, सेल को सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड होते रहते हैं हमेशा. वो 1 to 2 2 to 4 4 to 8 बनाते रहते हैं. वो डिवीजन चलता रहता है सेल्स में. तो डिवीजन करने के लिए सेल्स को जरूरत होती है प्रोटीन की. और ये प्रोटीन सेल के लिए कौन बनाता है? ये प्रोटीन सेल के लिए बनाती है दीज गोल्जी बॉडीज. दीज गोल्जी एपरेटस भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं कहीं गोल्जी बॉडीज भी लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है. तो आपको बहुत ज्यादा नहीं करने हैं ऑर्गेनल्स, हालांकि और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन आप इतने ही याद कर लो. मैं एक बार सबके फंक्शंस दोबारा बताती हूँ. सेल के सबसे चारों तरफ होता है सेल वॉल which gives extra protection to the plant cell. This is absent in animal cell. उसके बाद आता है cell membrane. Cell membrane gives a characteristic shape to the cell, give protection to the cell, and allows some things to go in and stops some things to go in. Clear? ये क्या हो गया?
स्क्रीन दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. उसके बाद there is cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance which provide a site to all the organelles to float. जैसे मैंने कल भी बताया था कि सेल अपने आप में बहुत छोटा होता है, एक डॉट में ही हजारों सेल होते हैं. अब उसके अंदर आप देख रहे हो कितने सारे पार्ट और हैं, तो ये कितने छोटे छोटे होंगे. ये आपस में टकराए ना, इनमें फ्रिक्शन होने से खराब ना हो, इसलिए इसमें जेली टाइप सब्सटेंस भरा रहता है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ. इसलिए ये आपस में टकराते नहीं है, और टकराएंगे भी तो इतने स्टिकी हो जाते हैं साइटोप्लाज्म की वजह से कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता. उसके बाद सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस. ठीक है, हर न्यूक्लियस के पास अपनी एक अलग मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन से अलग एक अपनी ही इसकी मेम्ब्रेन होती है. ये अपना एक अलग कमरा बना के बैठा है. ये कह रहा है ये मेरा कमरा है और इस कमरे का ये दरवाजा है. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो उस कमरे का दरवाजा है, और उस दरवाजे को क्रॉस करके कोई भी अंदर नहीं आ सकता. तो सेल न्यूक्लियस के पास एक अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है अलग ही. देख रहे हो ना, ये बना हुआ है, चारों तरफ बाउंड्री सी बनी हुई है इसकी, उससे कोई भी एंटर नहीं हो सकता. और न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म के अलावा एक अपना स्पेशल टाइप का जेली टाइप सब्सटेंस भी होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. यही फर्क है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस के पास, और अपना न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, जबकि यूकैरियोट्स में नहीं होता. यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है वो सेल मेम्ब्रेन को ही अपनी मेम्ब्रेन मानता है और साइटोप्लाज्म को ही अपना लिक्विड मानता है. ठीक है, यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्पेशल है, ज्यादा अपने आप को हीरो बनता है. वो कहता है नहीं भी, मुझे तो अलग कमरा चाहिए, मेरे कमरे की बाउंड्री भी अलग होगी और मेरे कमरे का जो एटमॉस्फेयर है यानी उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो भी अलग होगा. इसे हम न्यूक्लियर मटेरियल भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. हाँ जी, अच्छा. उसके बाद आते हैं वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स. ये दोनों ही चीजें प्लांट सेल में होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती. एनिमल्स में वैक्यूल कई बार होते हैं बट बहुत छोटे होते हैं साइज में और बहुत कम होते हैं. प्लास्टिड्स का काम है कि ये क्लोरोफिल और क्रोमोप्लास्ट जैसे पिगमेंट्स प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स के फ्लावर्स को कलर मिलता है और उसकी लीव्स को भी ग्रीन कलर मिलता है और वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट को ट्रैप करने की एबिलिटी होती है. वैक्यूल्स का काम होता है वो प्लांट के खाना जो प्लांट बनाता है उसको स्टोर करके रखता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी सबके प्लांट में, एनिमल में, सब में होता है. इसका काम है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी सेल के काम आती है. लाइसोसोम्स जो है वो सेल एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो. और जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है अपने अंदर कलेक्ट करके ब्लास्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है. ठीक है, क्रोमेटिन ये क्रोमोसोम्स के पार्ट होते हैं जो जिनके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते हैं. न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. उसके अलावा इसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टरिस्टिक्स को पहुंचाने में हेल्प करते हैं. गोल्जी बॉडीज जिन्हें हम गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, ये हमारे सेल के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं यानी प्रोटीन्स को बनाते हैं. उसके अलावा एक और पार्ट होता है वो भी बता देती हूँ, इसमें लेबलिंग नहीं है उसकी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सेल के अंदर. एक चीज को प्रोटीन यहाँ बना मान लो गोल्जी बॉडीज में, और उसकी जरूरत है मान लो हमारी किसको, उसकी जरूरत है मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर गोल्जी बॉडीज से इस प्रोटीन को कौन पहुंचाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो इस तरीके से सेल के अंदर, ये सेल अपने आप में बॉडी है पूरी जिसके अंदर जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है, ऐसे सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स, और उनका अलग अलग फंक्शन होता है. क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपका इसमें नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो आता है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. ये सब मैंने आपको बता दिया, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का, वैक्यूल्स का, इस क्रोमोसोम्स का, प्लास्टिड्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सब मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइसोसोम्स का, माइटोकॉन्ड्रिया का. अब आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. तो क्या डिफरेंस है? नंबर वन, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होता. बताया मैंने आपको रीजन
क्योंकि एनिमल सेल में देयर इज वेल डेवलप्ड स्केलेटन सिस्टम जो कि प्लांट सेल में नहीं होता, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो इज लोकेटेड इन द पेरिफेरी ऑफ द सेल, मतलब न्यूक्लियस जो है वो सेल की थोड़ा साइड में होता है, साइड में पड़ा होता है एक, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में, ठीक है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लांट सेल में देयर आर लार्ज वैक्यूल्स एंड दे आर मोर इन नंबर, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स या तो होते ही नहीं या फिर बहुत ही कम होते हैं नंबर में और बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? So these are the 4 reasons, और उसके बाद आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बनाना होता है, which is a very important 3 marks question। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। एक तो आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में आपको ऐसे लेबलिंग करनी होती है हमेशा, दोनों डायग्राम बना दो, जो चीजें दोनों में है तो उनको तो लेबल ऐसे कर दो, जो सिर्फ एक में ही है उसको ऐसे लेबलिंग कर दो। ये सेंट्रियोल्स है एक पार्ट, ये एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। मैं आपको ज्यादा करा रही नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा पार्ट्स करने में, आप इतने ही काफी है। क्या यस मैम। चैप्टर खत्म हो गया। अब इसकी वीडियोस मैं आपको भेजती रहूंगी, एंड एज आई टोल्ड यू असाइनमेंट मैंने पहले नहीं डाले थे, अब डालूंगी, इसलिए नहीं डाले पहले बिकॉज आप लोगों के पास क्या था, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ था, है ना। तो चैप्टर आप असाइनमेंट कैसे करोगे, क्वेश्चन आंसर्स यू विल डू इन योर